I told you in the last class also, there are few terms which are new to you, so be attentive in the class because काफी चीजें जो है इसमें different है and you need to understand. So chapter is reproductive health. Reproductive is, अगर आप लोगों को याद हो WHO के अकॉर्डिंग की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन. हाय बच्चे, गुड आफ्टरनून. बच्चे we have started with this chapter. Right now we are starting with this new chapter, chapter 4, reproductive health. तो WHO के अकॉर्डिंग अगर हेल्थ की डेफिनेशन पूछें तो डेफिनेशन इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. बट लेटर ऑन इट इज एडेड एज टोटल वेलबींग इन टर्म्स ऑफ physical, mental, behavior, social, and reproductive. So later on, they have added this reproductive part also. Please write down the definition. Start with the writing part. Write down the definition. The definition of reproductive health. It refers to total well-being. It refers to total well-being in terms of physical. It refers to total well-being in terms of physical, emotional, behavioral लिख लेना, and social aspects of reproduction. So it refers to total well-being in terms of physical, emotional, behavioral, and social aspects of reproduction. And you'll be amazed that our country is the first one in the world to take this initiative. And the first program, that is family planning program, was first started at national level ताकि achieve कर सके reproductive health goal. Health is affected by, am I clear to everyone? Definition of health, yes? Yes, ma'am. So yes, this was this was the basic definition of health, reproductive health, physical, emotional, behavioral, and social aspects of reproduction. Our country is the first one to take this initiative. अब अगर हम बात करें, health is affected by many factors. So health की अगर हम बात करें तो health is affected by, write down everyone, health is affected by, generally जो हमारी affect करती है health, that is because of some infections that we carry from the outer side, जैसे आजकल चल रहे हैं viral infection. It may be your lifestyle, because of your food habits, lifestyle that includes your food, water, rest, exercise, your habits, and lastly, it depends upon the genetic factors. Again, a very important question from NEET point of view. कि 3 factors पे हमारी health dependent है. It is affected by these 3. तो genetic disorders या फिर genetic defects, जिनको deficiencies भी बोलते हैं, with which an individual is born. So health is affected by these all factors: genetic disorders and defects, infection, and your lifestyle. Lifestyle में लिख सकते हो dash डाल के. It includes food, water, rest, exercise, and habits. Dolly, bete, write down. We have just now started with this new chapter.
Ansh, today we have started with this new chapter. Look on your screen, everyone. अभी तक आपने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 2 डेफिनेशंस लिखी हैं. सबसे पहले आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन. Ansh, Dolly, I'm repeating it for both of you. Definition of reproductive health. Reproductive health, it refers to total well-being in terms of, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, it refers to well-being. It refers, according to WHO is what? World Health Organization. According to WHO, it refers to total well-being in terms of emotional, physical, behavioral, and social aspects of reproduction. इन सबको इंक्लूड किया गया रिप्रोडक्शन के साथ. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू हैव सो मेनी चिल्ड्रन. एक कपल के पास ही 10-10, 11-11 बच्चे होते थे. बट नाउ वी हैव टू गो फॉर अदर थिंग्स लाइक टेस्ट ट्यूब बेबीज, IVF टेक्निक्स in order to have a single child. So why this is so? Why this is this type of a difference? So I told you these are the factors which are related. एक फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है. तो इसमें रिप्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय. अनुभव, you join in late. We are doing this chapter reproductive health. Please write down this definition quickly because आज काफी टॉपिक्स फिनिश करने हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉप पे लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू WHO, I have written its definition also. Total well-being in terms of physical, emotional, behavioral, and social aspects of reproduction. Health is affected by 3 factors: infection, lifestyle, that include your food, water, exercise, and your habits. And genetics में okay, genetic defects or disorders. So I'm moving to next part. So what were the problems and the strategies that were used since earlier times? तो मैंने आपको ये बताया था, our country was the first one in the world to take initiative. Our country was the first one in the world to take this initiative where various action plans or programs at national level were introduced. So इसी में हम पढ़ेंगे problems and strategies. You have to read this chapter from your NCERT also. So what were the problems and what were the strategies that were used earlier? इसमें बड़ी interesting facts आएंगे. So just listen carefully. So our country, अभी बताया, it was the first one to initiate various plans and programs at national level. And right now, a program which is called as RCH, the Reproductive and Child Healthcare Program. These programs, this is, लिखो please, write down the heading, program, problems and strategies, उसमें लिखो at present RCH, that is Reproductive and Child Healthcare Program, which is related to child and mother health. इसका एम लिख लेना, मेन एम. पहले आपने लिखा RCH की फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. काफी गवर्नमेंट पेन्स ले रही है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए स्पेशली. तो मेन एम ऑफ प्रोग्राम, इसमें पॉइंट्स लिखोगे. टू क्रिएट अवेयरनेस, याद होगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए भी, मदर के लिए भी. To create awareness among people लिखा सभी ने. To create awareness among people to discuss about accessory organs. लास्ट टाइम हमने बहुत सारी डिजीजेस पढ़ी थी which are STDs, sexually transmitted diseases. तो
किसके रिलेटेड होती हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स, स्टडी अबाउट एक्सेसरी ऑर्गन्स। सबसे इंपॉर्टेंट एडोलेसेंस, सबसे ज्यादा क्राइम जो होते हैं वो एडोलेसेंस एज में होते हैं। एडोलेसेंस, safe and hygienic sexual practices, sexual practices that means जो इंडिया में प्रेवलेंट है, to marry with just one person, single marriage, so that is very hygienic, safe and hygienic sexual practices. Polygamy is not allowed, and to people make aware of these STDs. STD का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये RCH के का मेन एम है। दिस इज नॉट गिवन इन योर NCERT। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है CBSE में, व्हाट इज एक्सपैंड दिस RCH। RCH इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, एंड व्हाट वर इट्स मेन एम्स? एम्स में आता है क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, टू टेल देम अबाउट या टू डिस्कस अबाउट एक्सेसरी ऑर्गन्स, adolescents, safe and hygienic reproductive या sexual practices, lastly STDs। इसी के अंदर, can I move to next page? Yes, ma'am. इसी के अंदर what were its other goals? Yes, किसी ने नहीं लिखा हो तो I can move to the last page. Okay, so अगर मैंने बताया कि हमने ये जो टॉपिक पढ़ा था, इट इज RCHS रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में हमने ये पूरा पेज जो लिखा है, इट इज अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन ये तो रह ही गया पार्ट CHS चाइल्ड हेल्थ केयर। चाइल्ड हेल्थ केयर अब हम इसके अंदर लिखेंगे, चाइल्ड हेल्थ केयर टू गिव नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स। देखो, टू गिव नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो नहीं समझ आता क्या लिखना है, बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन NCERT। टू गिव नॉलेज अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड्स, केयर फॉर care of pregnant mothers. I told you this is very important. Postnatal care, postnatal मतलब post delivery, postnatal का मतलब होता है post delivery care of both mother and child. Postnatal care of both mother and child. और बार बार आपको ये बात बताई जा रही है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कल को आप डॉक्टर्स बनोगे, यू विल टेल योर पेशेंट्स टू गो फॉर दिस इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। So last time I think someone has asked me, Khushi, I think you asked me this question, कि people living in Western countries, they do not prefer this breastfeeding process, but it is good for both mother as well as for child. मैंने बताया था कि मदर भी जितनी देर ब्रेस्ट फीड करवाएगी उतनी उसकी बॉडी भी शेप अप होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्रेस्ट कैंसर से, और हम एक कैंसर टॉपिक में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में कौन सा कैंसर प्रेवलेंट है और इंडिया में कौन सा प्रेवलेंट है। ब्रेस्ट कैंसर का मेजर कॉज होता है कि जो दूध के लम्प्स रह जाते हैं, बच्चे को नहीं दे पाती मदर्स, वो लम्प्स जो हैं दे टर्न इनटू ट्यूमर्स। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ सेक्स। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम जो है इंडियंस, इनफैक्ट एवरीवेयर मेल चाइल्ड इज प्रेफर्ड, and to make awareness about marriageable age. What is the age for marriage in case of girls and boys? 18 for a female and 21 for male. But why this is so? Why there is a difference? मैम 21 तक में मेल अर्न करने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्या करते हैं? मेच्योर होते हैं।
मैम दे गेट तो मैम मेंटली सिविक्स में पढ़ाया था, अभी वो अर्न करने लग जाते हैं अर्न करते हैं। गवर्नमेंट के ओके ओके नजरों में, तो ये ओके अभी अर्न कर लेते हैं 21 तक। ओके ओके। और यस, भी किसी ने कुछ आंसर दिया? यस, हु इज Ma'am, दिस? because females get mentally mature earlier, like it's believed, and यस males get mature later. यस, दिस इज द मेन रीजन। मेल्स जो है, आप लोग जो सारे एक जैसे एक ही एज के हो, तो फीमेल्स ऑफ योर एज दे आर बायोलॉजिकली 5 years elder टू दी मेल्स ऑफ सेम एज। दिस इज द मेन रीजन। ठीक है। अर्निंग तो हम लोग आप लोग 16-17 डिपेंड्स है ना, डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशंस ऑफ योर फैमिली। यू मे टेक ओवर फैमिली बिजनेस, तो बाद में भी नहीं भी कमा रहे हो या बाद में भी कमा रहे हो, तो मेन रीजन वाज दिस वन, देयर शुड बी अ गैप, बिकॉज जो एप्ट एज मेल्स की मानी गई 21 years, otherwise what will happen is there will be boom in population. तो अभी ये थोड़ी सी कहानी है, I'll tell you, then I'll come to this point. तो I think these goals are clear to everyone, because simple से goals आपको लिखवाए हैं। ये 3 mark का question आता है RCH के ऊपर। तो expand RCH, give its main aims and other goals, आपको ये फिर भी देने हैं other goals. Before 1980s, in the year I'm talking about 1970s, सिर्फ सुनना, it's a story, so I'm just going to discuss it with you. So 1970s में the population of India was very less. In 1960s or 70s, the population of India was very less. So they asked everyone कि अगर आपके बच्चे होंगे ज्यादा, you will be given land. ज्यादा परिवार, बड़ा परिवार, खुशहाल परिवार। तो फिर आप लोगों को पता है बूम आ गया कि हर घर में 11-11 बच्चे, 12-12 बच्चे। इनफैक्ट इवन इफ यू गो इनटू योर फैमिली, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भाई बहन बहुत ज्यादा होंगे। अभी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, तो विलेजेस में बहुत ज्यादा, एक ही फैमिली के इतने बच्चे हो जाते हैं। तो अभी भी अगर हम बात करें, बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव जी, अगर वो दोनों कपल हैं, हम जेनेटिक्स में ही रीड करेंगे, so if I'm not talking about their family, but it's just an example, if they have 11 children, तो बाकी 11 बच्चों ने जब वो शादी की होगी, तो वो डबल हो गए, 22 हो गए। फिर उनके अगर 4-4 बच्चे या 3-3 बच्चे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अगर हम 22 का भी 4 बच्चे भी लगाएं, तो एक फैमिली में थर्ड जनरेशन में 100 लोग आ गए। 2 लोगों से शुरू हुई थी पॉपुलेशन, समझ सकते हो, ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हुई है। दिस इज व्हाट इज ज्योमेट्रिकल इंक्रीज। तो 1970s में जब ये बात हुई, 60s में, बिकॉज देयर वाज नो लेबर, कोई सड़कें बनाने के लिए लेबर नहीं थी, घर बनाने के लिए लेबर नहीं थी, तो दे आस्क्ड एवरीवन कि जितना लोग होंगे, जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो लेबर मिलेगी और सड़कें बनेंगी, रेलवे ट्रैक्स बनेंगे, लेबर होगी और घर बनेंगे। तो दे सेड दैट बड़ा परिवार, खुशहाल परिवार, एंड यू विल बी गिवन लैंड फॉर दैट। तो फिर बूम आ गया पॉपुलेशन में। देन इन 1980s, government asked everyone कि now the population has exploded, it's a kind of a burden on the country, क्योंकि अब मैंने अभी बताया, एक फैमिली मेंबर में जहां 2 लोग थे, वहां आप 100 लोगों की आप गिनती कर रहे हो। इज इट समझ आ रहा है सभी को? तो आप 2 लोगों से पूरी की पूरी बस भर जाएगी। अगर 1-2 लोगों ने पॉपुलेशन शुरू की, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ज्योमेट्रिकल इंक्रीज कितना हो रहा था। अगर 4 भाई बहन हैं, तो उनके आगे बच्चे हुए चारों के 10-10, तो आप इमेजिन कर सकते हो तो कितने पॉपुलेशन एकदम बूम कर गई। तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दे सेड, नारा लगाया, हम दो हमारे दो। किसने सुना है इसके बारे में? ओके। तो कॉमनली ऑटोज पे, बसेस पे ये स्लोगन आना शुरू हो गया, जिस स्लोगन में होता था कि हम दो हमारे दो, कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए, नहीं होना चाहिए, प्रेफर्ड ये हुआ कि 2 चाइल्ड ही बहुत है, 2 बच्चे बहुत है, whether they are 2 girls, 2 boys or a boy or a girl, whatever, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन लोगों के पास अब पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई थी, बढ़ती जा रही थी, बिकॉज पीपल वर अनएम्प्लॉयड। मेन रीजन हेयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट।
अनएम्प्लॉयड होगा इंसान, किसी काम को नहीं जा रहा होगा, कोई पैसा नहीं होगा, काम नहीं होगा, what they'll do, they'll increase the population. So major reason for population increase was this unemployment. और population increase leads to poverty. खाने के लिए नहीं था फैमिली में. आप इमेजिन कर सकते हो, दो पेरेंट्स जो बेचारे दोनों ने शुरू किया, वो तो खैर सीएम थे, उनके पास तो पैसा अभी भी बहुत है, उनके पास तो एम्पायर्स हैं, तो दे कैन अफोर्ड, बट स्टिल वी cannot, our grandparents cannot afford to give 88 grandchildren या 88 family members equal share. Yes, is this possible for two people to give equal share to each child? No, it is not possible at all. तब इन्होंने क्या किया, population was out of control, especially in the case of villages. What they did was they go for sterility in case of males. आप सुनते रहना ये चीजें आप लोग, it is not given in NCERT, I'm just discussing. They started with the process of sterility in males. Doctors, they used to visit the villages, और वहां जाके वो जो मेल्स होते थे उनको स्टेराइल कर देते थे. वो स्टेराइल, अगर आप लोगों को याद हो, इट इज कॉल्ड एज वॉसेक्टॉमी. टॉमी मैंने आपको वर्ड बताया साइंस में, बायो में जब भी यूज करोगे इट मींस कटिंग. तो सर्जिकल कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस, और हिंदी में इसको नसबंदी बोलते हैं. जनरली इट इज डन इन द केस ऑफ डॉग्स. जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, आपने देखा भी होगा, पीएफए की गाड़ी आती है, पीएफए पीपल फॉर एनिमल्स, जो पीएफए की गाड़ी आती है, वो क्या करते हैं, वो डॉग्स को गाड़ियों में डालते हैं, उनको स्टेराइल कर देते हैं ताकि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन ना बढ़े. अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे, ब्रीडिंग रेट इज वेरी हाई, स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है. हर साल अगर एक फीमेल जो शी बिच या शी डॉग है, वो अगर 8-9 पप्स दे रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हो द ब्रीडिंग रेट इज very high and they grow in number very easily. So इसीलिए sterility is done. It is done in case of dogs, very common, but they made it compulsory in the 1980s during the time of Indira Gandhi. So they made this common, this nasbandi thing, and they asked everyone. अब जो विलेज में है उसको क्या पता, वो उसको कहते थे क्योंकि उस टाइम पे डेली वेज होता था, एक दिन की दिहाड़ी जो होती थी, दैट वाज अराउंड 200 रुपीज. कहते थे एक दिन मेहनत करो, पूरा दिन आप काम करोगे, लेबर वर्क, यू नो, सबसे टफेस्ट वर्क होता है लेबर वर्क. एक दिन का पूरा काम करोगे, यू विल बी गिवन दिस 200 रुपीज फॉर फुल डे. और ये डॉक्टर्स ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, दे आस्क्ड uneducated people, illiterate people to go for this sterility. और कहते थे कि जो आपकी एक दिन की दिहाड़ी है उसमें आपको ऑपरेशन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, दर्द भी नहीं होगी. If you have 2 kids, you are married, if you have 2 kids, then you should go for this, और आपको 200 रुपए मिलेंगे. तो इन लालच में लोगों को समझ नहीं आया, किसी को नहीं पता था कि they'll not be able to produce young ones throughout their life. So सबकी कॉमन करने लग पड़े ये sterility. So there was a case that happened during those times, and it was a shaking time. It was a matlab, it gave a chilblains to all the people in India. What happened was 18 years, sorry, not 18 years, 17 years का एक लड़का, उसके दोस्तों ने उसको बोला कि तूने डॉक्टर के पास जाना है और तूने सिर्फ ये बोलना है कि आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 kids. तो देखने में बच्चे बड़े लगते हैं, तो उसने जब ये बात बोली, और उसके फ्रेंड्स ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ 200 रुपीज, 3 फ्रेंड्स थे या 4 फ्रेंड्स थे, उन्होंने 200 रुपए के पीछे उस बच्चे को पूरी जिंदगी के लिए स्टेराइल कर दिया. He will not be able to produce young ones. So his life was gone. You know, this is very important part of life. तो उस बच्चे के साथ ये इतना बड़ा मिसहैप हुआ. डॉक्टर्स ने पूछा, he said I am 18 years, he said I have 2 kids, I want to go for this sterility. So he was given 200 rupees and he was sterile for life. So from that day onwards, it was asked to stop this, to abolish this scheme of sterility which was prevalent during that time. तो डॉक्टर्स को बोला गया कि अगर कोई चाहता है, अभी भी it is asked,
if you want to, then only you will go, but it is not good thing. I think you should not touch the sanity of any person without his or her permission. Yes, nobody is asked to destroy you for life. तो इसीलिए ये जो चीज थी, it was not good, but later on this was abolished, ये बंद हो गया. तो अब ये देखो, अब ये सिर्फ सिस्टम है, हम दो हमारे दो, और ये नारा जो है इट इज गिवन टू ऑल. चाइना में हम दो हमारा एक है, वहां पे ओनली वन चाइल्ड इज अलाउड. एंड इफ यू हैव टू चाइल्ड, अगर आपके बाद दूसरा बच्चा आ जाता है, गवर्नमेंट टेक्स योर चाइल्ड टू द प्रिजन, और सारी उम्र वो देते ही नहीं बच्चों को. तो दैट इज व्हाई पीपल इन चाइना व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग देयर चाइल्ड फॉर adoption to Americans, to other country people. वो कहते हैं कि हमारा बच्चा ले जाओ और उसको पालो. तो वहां पे सिर्फ एक बच्चे के, एंड दे हैव स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर दिस. वहां पे इसलिए पॉपुलेशन चाइना की सबसे ज्यादा थी, अब नाउ दे हैव कम डाउन. अब इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. अगेन इट इज नॉट अंडर कंट्रोल, बट अब जो कैलेमिटीज हो रही हैं, दे आर ब्रिंगिंग पॉपुलेशन बैक. ओके, सो आई गेस सबको ये ये आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे. एनसीईआरटी में कुछ थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, ये जो था स्लोगन आपके पास दिया हुआ है. नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग. और आप गवर्नमेंट ने बहुत काम किए हैं. बहुत गवर्नमेंट ने, जैसे अभी ये स्कीम थी कि बच्चे पढ़ने जाएंगे, दे विल बी गिवन एक मुट्ठी दाल. देखा है, सुना है किसी ने? एक मुट्ठी किसने? हाँ, तो एक मुट्ठी दाल मिलेगी और 1 रुपया मिलेगा, या फिर एक मट्ठी मिलेगी. आपको स्कूल आना है डेली. तो व्हाट वाज द रीजन? मेनी स्टूडेंट्स से आस्क मी, मैम व्हाट इज व्हाट इफ दे आर गिवन दाल का पानी होता है, उसमें प्रोटीन होता है. Yes, they were given protein water. Very good. They were given protein water. Actually में दाल तो कुछ भी नहीं बनेगा एक मुट्ठी दाल से, but they were given protein water. दाल को उबाल के बच्चों को देना चाहिए. That is important for their growth and development. अगर बच्चे को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, there is a disease which is known as PEM, protein energy malnutrition. Protein energy malnutrition में this is a disease, PEM, protein energy malnutrition. ये 2 तरह के diseases cause करता है, kwashiorkor and marasmus. kwashiorkor और marasmus में क्या होता है? एक में तो बिल्कुल बॉडी में रिब लाइक जो रिब केज है वो दिखना शुरू हो जाएगा. बच्चा इतना कमजोर हो जाता है कि आप उसकी रिब्स को देख सकते हो. तो ये बच्चा तो देख के पता चल रहा है कि इट इज अंडर नरिश्ड, और बच्चे को इमीडिएटली कुछ ना कुछ देना है. तो दिस इज व्हाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिजीज दे गिव दिस प्रोटीन. एंड प्रोटीन का सोर्स सबसे ज्यादा होता है दाल में या चिकन में. ऑब्वियसली चिकन, no one can afford chicken if they do not have any money for buying this food, simple food. They cannot afford to give them lavish या delicacies. सो एक दाल, गवर्नमेंट ने ये स्कीम कर दी कि एटलीस्ट वो दाल का पानी पिएंगे बच्चे और वो नरिश्ड रहेंगे. और इसी तरह दूसरी डिजीज आती है, इसमें पॉट बेली बन जाती है. बच्चा बिल्कुल कमजोर होगा लेकिन पेट ऐसे बेली शेप. अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ वाटर, इट्स अ डेफिशिएंसी. तो ये 2 बीमारियां, खतरनाक बीमारियां, और इंडिया में तो ये बहुत कॉमन हो गई थी. बट फॉर्चुनेटली बिकॉज हमारी कंट्री में बहुत लोगों ने, यूएन ने, यूनिसेफ ने, क्राई ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और बच्चों को प्रॉपर इलाज, मदर्स को और बच्चों को प्रॉपर इलाज मिला है. और बच्चे अब जो है अंडर नरिश्ड कम है. गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं डिफरेंट आती रहती हैं फॉर पोस्ट नेटल केयर. तो अभी हम ये पढ़ेंगे मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग. This please write down the points about this. Write down the heading and then I'll start with the points. सबसे पहला point आप लिखोगे. It gives necessary information. It gives necessary information, guidance,
and help to mothers. कल को आप लोग भी पेरेंट्स बनोगे तो I'll tell you, just write down, then I'll come to that point. After delivery, to give proper information, yeah, necessary information, guidance and help to mother before and after delivery, to look after infants. 1 साल से छोटे बच्चे को हम बोलते हैं इन्फैंट. 0 ईयर जिसमें होता है ना, up to 1 year child is called as infant. तो proper information, guidance and help to mother. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो मदर्स, जो न्यूली मदर्स, अब कल को सबकी मैरिज होगी तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड कि बच्चे को ये हो गया, वो हो गया, या मुझे ये नहीं समझ आ रहा कैसे करना है. तो दे गिव प्रॉपर गाइडेंस. देयर आर नर्सेस which assist mothers to help them how to take care of newborn. उसके बच्चे को ज्यादा हाथ पैरों में मालिश नहीं करनी है. बच्चों के जो पेट में अम्बिलिकल कॉर्ड, बताया था हमारे जब हम पैदा होते हैं हमारी मदर के साथ कनेक्शन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड. तो बेली पॉइंट की जगह वो पाइप होती है. किसने देखा है 10 दिन का बच्चा न्यू बॉर्न? ओके, मैं खुशी, अनुभव, हरजोत, युवराज. ओके ओके गुड. ओके, फिर आप लोग जो भी बच्चे हैं जो रह गए हैं जिन्होंने नहीं देखा तो डू दैट. एलिना, ओके. तो अब कभी भी छोटा बच्चा न्यू बॉर्न होगा 10 दिन से छोटा तो उसको देखना, उसकी बेली को, अब उसकी टी शर्ट थोड़ी सी उठा के बच्चे के बेली पे अब देखोगे देयर विल बी अ पाइप, और उसमें बहुत बड़ा सा सेफ्टी पिन लगा के उसे ओपन नहीं होती है वो पाइप. एंड दैट हैज अ वाइट फ्लूइड, बड़ा गंदा सा फ्लूइड होता है, येलोविश फ्लूइड, थिक फ्लूइड. वो पाइप जो है दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द बेबी. तो वो पाइप को काटना पड़ता है और उसको सेफ्टी पिन से कर देते हैं. अब वो 10 दिन में अपने आप एयर में सूखती है और गिर जाती है. और अगर गलती से 2-3 दिन में अगर वो जब तक सूखी नहीं है और आपका हाथ लग गया है और वो थोड़ी सी रिमूव हो गई तो ब्लीड होता है बहुत ज्यादा. आई टोल्ड यू दिस थिंग इन द लास्ट क्लास ऑल्सो कि ब्लीडिंग समटाइम्स इट इज सो सीवियर, तो एसीटोन लगा के या रेटिनॉल लगा के उसको बंद किया जाता है, अदरवाइज इट मे कॉज प्रॉब्लम्स टू द इन्फेंट. सो ये कुछ छोटी छोटी केयर है जो नर्सेज बताती हैं. नेक्स्ट लिखो, इट इंश्योर्स सेफ डिलीवरी ऑफ इन्फेंट. सेफ, it ensures safe delivery of infant. It ensures safe delivery of infant. अभी मैंने बताया ये सारी की सारी चीजें कौन बताएगा आपको? नर्सेस. नर्सेस आर कॉल्ड एज मिडवाइफ्स, trained midwives, trained nurses. आजकल तो मेल नर्सेस भी होते हैं. How many of you are aware of this? There was a picture also. But yes, it is very common, male nurses, because females cannot go, and cannot clean the reproductive parts of males, so males are required. So this is the reason that we have male nurses also. Next, to arrange milk feeding programs. अब मैंने आपको ये भी बताया था कई बार क्या होता है कि मदर, सॉरी टू से, बट मदर्स की डेथ हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, तो वो बच्चे मदर मिल्क नहीं ले पाते. तो देयर आर सम पीपल हु डोनेट देयर मिल्क फॉर दोस अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. तो देयर आर सम काइंड लेडीज जिनके मिल्क प्रोडक्शन ठीक है या बच्चे की फीड बच्चे को मिल रही है, तो दे गो एंड डोनेट देयर मिल्क to those children who are motherless, who have lost their mother. So again, to arrange milk for them. Next point, सबसे important जो कल को आप लोग भी करोगे, काउंसिल करोगे, देखो, to educate newly wedded couples about the advantages of small family.
तो जो कह रहे थे बड़ा परिवार खुशहाल परिवार, अब वो बात पे आ गए छोटा परिवार सुखी परिवार। To educate newly wedded couples about the advantage of small family. तो आगे आप लोग भी स्मॉल फैमिली में बिलीव करोगे? To educate newly wedded couples about the advantage of small family. अभी ये तो बातें कहने की है. If you have strong facilities, infrastructure, professional experts, and material support मतलब financial support, then only these can be implemented. तो समझ आ रही है मेरी बात कि अगर आपके पास पैसा है, फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सपर्ट्स हैं, तभी ये पॉसिबिलिटीज हैं. In Chandigarh, we are privileged that we have all the facilities. पोलियो ड्रॉप के लिए आते हैं लोग आसपास भी. इनफैक्ट इवन the local areas which are nearby जो areas हैं, वहाँ पे भी कोई बच्चा जो है पोलियो ड्रॉप के बगैर नहीं रहता. पॉपुलेशन कंट्रोल है. और दूसरा जो भी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज आर टोटली अवेलेबल. इफ यू गो टू लोकल डिस्पेंसरीज within your area, within your sector, then you will find that dispensaries are also, they're very clean, they're hygienic. How many of, I'm just asking, how many of you have gone to PGI, have visited PGI or gone? Okay. So is PGI, you consider PGI as clean or it is not? Ma'am, clean. How many of you say it is clean? Yes. Clean. Okay, yes, very good. But I think you have not visited the washrooms there. Not clean. Yes. Who is it? Who is this? Yes. I'm Yuvraj. Yuvraj, huh? So you must have visited, which department you visited, Yuvraj? Ma'am, trauma center. Trauma, oh my goodness, no. बच्चे यहाँ वहाँ जाओगे, वहाँ तो it's trauma हो गया, या फिर जहाँ सर्जरीज होती हैं, it's bad situation there because किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का सिर कटा हुआ है. तो sorry to say, but बहुत unimaginable conditions हैं. And there the patients, they have to go to washrooms. तो वहाँ पे washrooms में भी they are not clean at all. तो reason is because वहाँ पे pressure बहुत है, बहुत लोग आ रहे हैं. आप अभी clean करके गए हो washroom और बाहर निकले हो तो somebody has entered and vomited there. Somebody has entered the washroom and they are totally uneducated and they have peed or used the washroom in the wrong way. आसपास potty कर दिए, तो या females हैं तो they have not taken care of the clean and hygienic parts. So this is a reason that people are working there day and night for your service, but still they are not able to achieve that much. Because वही अगर आप पेनल्टी लगा देंगे, आप हर चीज पे आप चेक रखोगे, डांटोगे, तब शायद ठीक हो. But still, the doctors there, they are like gods because एक टाइम पे इतने number of patients को देखना और उनको इलाज देना, ट्रीटमेंट देना, क्योंकि जो भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा होती है, then they ask you to visit PGI. बहुत ज्यादा खतरनाक काम होता है, तब आपको बोला जाता है. तो just imagine all severe cases, they are going to that place, है ना. तो वहाँ पे it is not easy to handle everything, but still we are privileged that such a good hospital is here for us, because कई लोगों को तो एक छोटी सी मेडिसिन के लिए ही बहुत दूर जाना पड़ता है. तो इसमें लिखो जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स लिखो. We must have strong infrastructure. और आपको बताया था PGI is an institute. It's a post graduate institute. पोस्ट ग्रेजुएट करने जाते हैं लोग, तो वहां पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, यू विल सी देम, दे आर सो यंग, दे आर सो गुड. देख के खुश हो जाता है मन. दे आर सो, मतलब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं.
आप लोग जैसे अभी +2 करके निकले हो, MBBS करोगे, बैचलर्स करोगे फॉर 5 years, then you'll go to this PGI for MD. बिल्कुल आपकी तरह ही स्टूडेंट्स होंगे वो. सो उन किन के अंडर काम करते हैं? प्रोफेशनल्स जो होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके अंडर वो काम करते हैं. So they make a team. So we must have strong infrastructure, professional experts and material support. पैसा बहुत जरूरी है. डिस्पेंसरीज देखो, इतनी सुंदर डिस्पेंसरीज हर सेक्टर में बन गई हैं. डॉक्टर्स इतने पढ़े लिखे आ रहे हैं. तो एवरीथिंग इज चेंजिंग नाउ. अब एक बड़ा ही अजीब सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. सो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ? Yes, ma'am. Okay. Now coming to very important topic, that is population explosion. एक टर्म आती है, माल्थस एक साइंटिस्ट था, उसने बोला जो फूड है हमारा, सिर्फ सुनना आप, फूड दैट इज इंक्रीजिंग अरिथमेटिकली whereas our population is increasing geometrically. मतलब अगर मैंने n की वैल्यू डाली यहाँ 3, तो 2 into 3 6. ये फूड है सिर्फ 6 लोगों के लिए. अगर मैंने l की वैल्यू डाल दी, सॉरी स्क्वायर, तो खाने वाले कितने हैं? पॉपुलेशन 9. नाउ कमिंग टू 5, 2 5 इधर आ गया 10. तो खाना है 10 लोगों के लिए, लेकिन अब बताना Ma'am, खाने वाले 20. नहीं n raised to power 2 raised to power 5. Ma'am, 5 raised to power 2. Oh, sorry. Yes. n की वैल्यू है 2 raised to power 5. 2 raised to power, क्या गड़बड़ हो रही है? Sorry, it is 2 raised to power n. Sorry. हाँ, got it. 2 raised to power n. Ma'am, 5 raised to power n. 5 raised to power 2. नहीं, 2 raised to power n. इसमें तो खाना जो है, ओके. Yes, ma'am. हाँ, तो खाना था 32 लोगों के लिए, पॉपुलेशन है 32 लोग, खाना है सिर्फ 10 लोगों के लिए. तो व्हाट विल हैपन? स्ट्रगल, लड़ाई होगी, कंपटीशन होगा. आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ 10 लोगों का खाना है, खाने वाले हैं 32. तो अकॉर्डिंग टू माल्थस, whenever there is this disbalance in population and food, there will be some disaster. जैसे अब भी हो रहा है. पॉपुलेशन जो है अपने आप को कंट्रोल करेगी. एंड विद दिस ही हैज गिवन 2 curves, J shape and S shape curve. तो उसने ये बात बताई, एक में आया 2 raised to power n, एक में आया 2n. Food is growing arithmetically, population is growing geometrically. तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अगर तो पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकली, बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं. एंड दिस शेप ऑफ कर्व इज J शेप. लेकिन फॉर्चुनेटली आवर अर्थ हैज अ कैरिंग कैपेसिटी. अर्थ कुछ देर बाद अपने आप को चेंज कर देती है, जिससे कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर होगा और पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी. And this type of curve, you can see it is like S-shaped curve, the sigmoid. Am I clear? माल्थस ने बताया, माल्थस ने सिंपल सी बात बताई कि food is growing geometrically, arithmetically, and this population is growing geometrically. But अर्थ जो है उसमें नेचुरल कैलेमिटीज या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि पॉपुलेशन कम्स डाउन टू नॉर्मल, and this leads to formation of this sigmoid curve. Okay, तो ये एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोड क्यों हुई, क्यों ये पॉपुलेशन फेवरेबल, इतना क्या कंडीशन हुआ कि बढ़ती जा रही है? तो देयर आर सर्टेन रीजंस. अब अगर यहाँ पे इंडिया में किसी की डेथ होती है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ डेथ रेट इन केस ऑफ इंडिया? यहाँ पे एवरेज कब होती है डेथ?
elderly people, 5 years. yes, up to 65 to 75, कहते हैं ना बूढ़े हो गए तो 75 years. In America it is 90 to 95 years. अगर इस एज में किसी की डेथ होती है ना तो बोलते हैं he died so young. So you can just imagine the difference in the age between India and America. Sorry. So the age difference क्यों है? Can anyone tell me what is the reason? कि अमेरिका में ऐसा क्यों है? वहां पे ऐसे क्यों बोलते हैं ये तो बच्चे हैं? नेचुरल फूड है तो वहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ ही मिलावटी है. Yes, मुझे there are, yes, reason is yes, खाना बहुत अच्छा है, प्योर है. और the reason for, write down population explosion. हेडिंग लिखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. रीजन, सबसे पहला ये रीजन आता है इम्प्रूव्ड या इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज. किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, and you can increase the lifespan of that person if you have money. Can you beat it? Can you believe this, that if you have money you can increase the lifespan of a person? बताओगे क्यों? क्योंकि जरा सी प्रॉब्लम में ये जो अवॉइड करते हैं लोग हॉस्पिटल का. यस यस. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि increased health facility and improvement in technology. अब कैसे इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब आया? अगर किसी का, आपने देखा है ब्रेन इज डेड एंड यू आर नॉट डेड, बताया हुआ है आपको कि अगर हमारा ब्रेन डेड होता है तो हम कोमा में चले जाते हैं, बट अगर हार्ट डेड होगा देन यू आर डेड, इवन इफ योर ब्रेन इज लिविंग, योर स्किन इज लिविंग, योर आईज आर लिविंग. योर हार्ट इज डेड, दैट मीन्स योर बॉडी इज डेड, बट व्हेन योर ब्रेन इज डेड योर बॉडी इज नॉट डेड. तो इन केस ऑफ दिस हार्ट, अगर आपका हार्ट काम करना कम हो जाता है तो वी हैव इम्प्रूव्ड आवर टेक्नोलॉजीज कि हार्ट को कंट्रोल करने के लिए भी दे गिव यू एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नोन एज पेसमेकर. You all know pacemaker is a battery. It is a lithium halide battery which is attached near to your heart. और जैसे हमारा ब्रेन में SA नोड जो हमारे पेस मेकर है, नेचुरल पेस मेकर इज SA नोड, तो वो पेस मेकर का काम करता है विच जनरेट्स इम्पल्स फॉर हार्ट बीट. कैसे पता चलता है हार्ट को कि मुझे इतने सेकंड्स के बाद फिर से पंप करना है? तो वो पेस मेकर हम आर्टिफिशियल लगाते हैं. इट हैज टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 3 years. तो जस्ट इमेजिन doctors, your technology has improved to so level that it can give you this machine which works like your natural pacemaker. जो गॉड ने बनाई है बिल्कुल वैसी सिमिलर चीज आपकी बॉडी में इंसर्ट कर देंगे एंड यू कैन सर्वाइव फॉर इयर्स. एक्सक्यूज मी मैम. यस. फॉर एग्जांपल किसी का हार्ट सिर्फ 60% काम कर रहा है, तो उसके अगर ये पेसमेकर लगाए तो 100% काम करना शुरू कर देगा. पेसमेकर सिर्फ जनरेट करता है इम्पल्स, ये हार्ट को नहीं कंट्रोल कर रहा. इट इज जस्ट गिविंग दी, इट इज लाइक अ टाइम मशीन, टाइम दे रहा है. अच्छा, ये जो है ना चीज, जैसे अभी मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा अनुभव ने कि व्हाई आर्मी पीपल दे लिव फॉर मोर years as compared to normal people, because of their lifestyle, because of their eating habits, because of their schedule. They wake up in the morning, they do exercises, they have regular routine and they follow this routine for years. तो इसीलिए they survive for longer time. Otherwise a normal person, civilian जिसको बोलते हैं हम लोग,
We do not follow any kind of a schedule. You can look at your parents. They are in the 40s and they are under so much of stress, maybe because of you, maybe because of work, maybe because of, and they are not taking care of their health. They're not giving time to themselves. Is it? So this is the time that they should be working on themselves, but they are not able to because they do not have any particular schedule. So this is why it is asked to take care of your body when you cross 40 or even 30. In case of female, it is after 40 because अगर आपने मैंने आपको बताया था कि देखा हो हर फीमेल की नी प्रॉब्लम होती है, नी में, बैक में, बहुत सारी, इट इज वेरी कॉमन बिकॉज फीमेल्स को हर मंथ मेंस्ट्रुअल फेज से निकलना पड़ता है. देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड के साथ कैल्शियम लॉस होता है. तो आफ्टर सर्टेन एज देयर इज इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम विद इन आवर बॉडी. तो वो नी से, जॉइंट से एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, विच क्रिएट्स प्रेशर ऑन द नीज. तो supplements are given to combat that loss, but it is not given here in India, but it should be there. Population explosion में आपने लिखा increased health facility, improvement in technology. तो इसमें अब नीट में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर. इन 1900 AD पॉपुलेशन जो थी, देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 2 बिलियन in 1900 AD. Wow. Okay. Yes, it happens. Army people, they survive for long. And the world population in 1900 AD was 2 billion. And in 2000 AD, it was 6 billions. 3 times in a span of just 100 years. कहते हैं ये पॉपुलेशन एकदम इतनी चेंज कैसे हो गई, 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 100 years. और डबलिंग टाइम 50 years होना चाहिए था. डबलिंग भी नहीं, सॉरी, डबलिंग टाइम होना चाहिए था ये 100 साल में, बट ये तो 3 times हो गई. द रीजन लिखो. द रीजंस वर, क्या रीजंस रहे होंगे? ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, डिक्लाइन इन डेथ रेट. और रीजन क्या रहा होगा? अब आप लोगों के लिए नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी. जब मैक्सिमम डेथ होती है, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे को बाहर आके सांस नहीं मिलता, बच्चे को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, क्लीन नहीं हो पाता, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. मदर्स जब बर्थ दे रही होती है, पार्चुरेशन उसको टर्म मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है. पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ. मदर में ब्लड लॉस हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट. अभी भी विलेजेस में आधे से ज्यादा बच्चे अनाथ हैं, मदर्स नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस दे वर नॉट गिवन प्रॉपर केयर. जो वहाँ लोकल डॉक्टर्स हैं, लोकल दाइयाँ, जिसमें आपने सुना लेडीज ही दे परफॉर्म दिस प्रोसेस, घर में ही कर लेते हैं, बच्चे को निकाल लेते हैं, ब्लेड से काट देते हैं, और या फिर किसी चाकू से या किसी से कट कर देते हैं गर्म पानी में बच्चे को और उसको रख देते हैं. इट इज नॉट प्रॉपर कंडीशन दे आर गिविंग. तो जो बच्चा बच जाता है वो आगे कंटिन्यू करता है लाइफ को, अदरवाइज मदर और बेबी के लिए इट इज वेरी डेंजरस. तो लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन IMR एंड MMR. क्योंकि हमने अब बचा लिया है बच्चे को भी, जच्चे को भी. ऐसे जच्चा बच्चा बोलते हैं, दैट मीन्स मदर एंड चाइल्ड. डिक्लाइन इन MMR, डिक्लाइन इन IMR. अब प्यारे बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन था नीट का. population, large number of population is because of more number of children. आपने ऑप्ट करना है, बताना है मुझे which option is correct. because of more number of children,
because of more number of adults, because of more number of elderly people. Can you repeat the question? Okay, I'll do that. Okay, I'm asking कि कहते थे population is large. What is the reason for large population? Is it because of large number of children present in that population, or is it because the adults, number of adults is more? Is it because the elderly people are there? Ma'am, How many adult. adults? How many? Elderly people and children. Okay, so I'm asking. Children. Okay, let's see. Okay, I'm asking. How many of you say? How many of you go with option A, children? Raise your hand if you follow this option A. Okay, many. Okay, A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 people are saying that it is because of the children. 9. Okay, ठीक है. What about B? B. Tricky question है. B, 7. Okay. What about C? C के साथ 7. Okay. Fluctuate क्यों हो रहा है? अभी तो 10 थे. C के साथ how many with C? How many with option C? Less. How many with option B? B, adults. 5. How many with option A? Children. Okay, I'm totally confused. Some are saying with A, some are saying with B, some are saying with C. So population is because hi Manpreet. Manpreet, we are doing chapter 4, which you were late. Manpreet? Yes, ma'am. What happened, bete? Is everything fine? Yes, ma'am. मैं ना गई भी थी कहीं, so मैम हुआ नहीं. Okay, no worries. बच्चे, we have started with this 4th chapter. So I'm asking question कि पॉपुलेशन कहते हैं एक जगह की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. किसको देख के कहते हैं? वहां के बच्चों को ज्यादा देख के कहते हैं, वहां के एडल्ट्स को देख के कहते हैं, वहां के elderly people. And my dear friends, the population is, yes Manpreet, what you will say? कि वहां के एरिया maximum students are saying it is because of the children. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Yes. Ma'am, it is adults because unemployment देखे तो adults ज़्यादा unemployed होते हैं तो. Yes. I think we have discussed this. Yes. Yes, ma'am. Yes. So this is the answer. Maximum students, believe me, they give this answer that it is because of children. Yeah, it is because of elderly people that population of that area is more. But my dear friends, the answer is adults. Sorry, what is happening? It is because of adults. And why adults? क्योंकि जितना ज़्यादा adults मतलब हम लोग, आप लोग, हम, we are in reproductive age. Reproductive age, that means age at which gametes can be produced. लोग इसमें ज़्यादा होंगे. अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इंडिया में. अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इसलिए बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन बढ़ेगी. Population is because of this adults. I guess it is clear with everyone now. It is because of the adults that population, number of population is more. तो इसमें लिखो increase in number of people in reproductive age. इसी में third point लिखो increase in number of people in reproductive age. अब कहते हैं क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन?
बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है बताओ, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ? More competition. यस यस, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. It leads to increase in the competition within the individual. तो population देखो, overpopulation has resulted in problems like depletion of natural resources, इंडिया में सब कुछ खत्म हो जाता है. वैक्सीनेशन आई है, खत्म हो गई, आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए. 18 to 45 वाले सब अभी ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग. रीजन इज फॉर दिस vaccination is not available because of overpopulation, the depletion of natural resources, energy crisis, shortage of electricity, shortage of water, eco degradation. जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने घर ज्यादा चाहिए. अगर आपने नॉर्मली देखा हो जीरकपुर में और खरड़ में, आज के टाइम पे जाके देखो, यू विल फाइंड मोर कंक्रीट एरियाज. आपको वहां पेड़ पौधे दिखेंगे ही नहीं. How many of you has seen this change? Earlier there used to be so many plants, so many greeneries, so many agricultural land was there, but now everywhere you will find just concrete. Yes, so many of you have seen this eco degradation. This is a bad thing. और फिर इसके साथ आती हैं सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. आज के टाइम पे चल रही है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लोगों की खत्म हो चुकी है, एसेंशियल गुड्स पॉसिबल नहीं है, मिल नहीं रहे. यू नो व्हाट आर एसेंशियल गुड्स? तो पैंडेमिक ने सिखा दिया है, गरीबी बढ़ गई है. These are all social economic problems. Social economic problems like food, space, employment, non-availability of this essential goods has increased. और आपको एक हैरानी की बात सुनो कि I've read an article day before yesterday. एक तो अगर आप लोगों को पता है ये ब्लैक फंगस के बारे में I've told you, बट अभी एक और डिजीज आ रही है which is called as ABC, जिसमें एक क्लाउड एयर जो पोल्यूशन क्लाउड एक फॉर्म होगा, जिस इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. जो ब्लैक क्लाउड एक फॉर्म होगा जिससे क्या होगा, विल बी चोक टू डेथ. तो ये recent prediction है by the end of year 2021 they'll say they have said this कि अगर ये pollution level जितना increase हो रहा है because of increase use of these natural resources, जितना pollution increase हो रहा है, आप देख रहे हो ये change in weather, change in season. अब कल परसों आपने storms देखी, storms कितनी unpredictable थी, जिससे कितनी जितना एग्रीकल्चर खराब हो गया, लोगों ने आम लगाए हुए थे सब खराब हो गए. तो दिस इज व्हाट इज नेचुरल कैलेमिटी. तो ये जो चीजें हो रही हैं इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट. और ये ऐसा ही कुछ, यू नो व्हाट इज द मेजर रीजन? मेजर रीजन इज जो अमेज़न फॉरेस्ट था which is called as lungs of earth, उसको डिस्ट्रॉय किया हमने. तो वहां से ये सब चीजें जो है पोल्यूशन लेवल has increased, and it is increasing at such an enormous rate कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट लिखो आप, eco degradation includes pollution and sanitation. और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो जितना स्ट्रेस होता है वो ज्यादा बढ़ता है फ्यूल पे, फॉसिल फ्यूल पे. गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, एक ही घर में कितनी कितनी गाड़ियां हो गई हैं. तो दिस स्ट्रेस ऑन दी fossil fuel increases because of increase in population. Okay, so ये तो आज जो हमने पढ़ा है बिल्कुल बेसिक पार्ट था. I'll start with this population topic.
in the next class. इसमें कुछ numericals हैं which are not given in your NCERT, but we'll discuss those numericals also. Please do not miss your classes. Reason being, ये जो topics हैं NCERT से पढ़ोगे उतने नहीं समझ आएंगे जितना आप, क्योंकि ये जो अब this question comes for 3 marks. What are the consequences of overpopulation? You need to make this question. जो बच्चे ने लिखे होंगे तो आप लोग लर्न करके लिख सकते हो, अदरवाइज दे आर डिफिकल्ट टू मेक. समझ आता है बट लिखना क्या है ये नहीं पता चलता. So if you have